Okay, so good morning. We start our meeting today of bilingual reading in Hindi and English of Anubhavatmak Adhyatmavad 2023 edition, which we are calling in English as Realization Centered Spiritualism by Shri A. Nagraj. So we have covered up to page 39, and today we will begin chapter 4, which begins from page 40. So name of the chapter is आत्मा अस्तित्व में अविभाज्य है. Sorry, आत्मा जीवन में अविभाज्य है. So, saying it, Atma is inseparable in and from Jivan. So broadly in this chapter, as the title indicates, that in Jivan Vidya's Darshan, we have been introduced with the reality called Jivan, and we otherwise also know a real or have heard about a reality called Atma. So what Babaji is doing is the placement of Atma, that Atma is an integral part of Jivan. Okay, so Jivan is a larger entity. Atma is a part of that. It is inseparable from it. It is integral part of it. So जीवन में को जब हम देखते हैं तो अर्लियर आई वाज थिंकिंग कि इसको सिर्फ कर देते हैं आत्मा इज इनसेपरेबल इन जीवन, बट आई थॉट दैट मे बी it reads better and conveys better. Atma is inseparable in and from Jivan. So Atma is inseparable in Jivan, Atma is inseparable from Jivan. ऐसा ठीक है देव भाई, आपको ऐसा लग रहा है? हाँ जी भैया, ठीक लग ठीक है, ठीक है. So आप इसको एक बार देव भाई अगर आप पढ़ेंगे तो then we can line by line also read it. Okay, can we read like 2 paragraphs? हाँ, 2 पैराग्राफ्स पढ़ लेते हैं, बढ़िया रहेगा. Okay. जीवन का स्वरूप विकास पूर्णता के फलन में चैतन्य पद प्रतिष्ठा सहज एक परमाणु है जो भार बंधन और अणुबंधन से मुक्त है. यही जीवन के नाम से संबोधित है. भ्रम बंधन से मुक्त होना मोक्ष है. यही जागृति सहज प्रमाण है. Jivan is an atom which is established in the sentient plane as a consequence of development completeness and is free from gravitational bondage and molecular bondage. This has been named Jivan. To be free from the bondage of delusion is moksha. This itself is the evidence of awakening. जीवन में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा अविभाज्य रूप में क्रियाशील है. ये सब निश्चित क्रियाओं के नाम हैं. वस्तु के रूप में मध्यांश सहित 4 परिवेशों के रूप में क्रियाशील इकाई है. इस प्रकार जीवन अपने में चैतन्य पद प्रतिष्ठा सहित मानव परंपरा में समझदारी सहित परावर्तन प्रत्यावर्तन पूर्वक जीवन सहज क्रियाओं को प्रकाशित करता ही रहता है. यही जागृति है. मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि and Atma are inseparably active in Jivan. All these are the names of well-defined activities. As a reality, Jivan is an active unit consisting of a nucleus and 4 orbits. In this manner, Jivan in itself, established in the sentient plane together with wisdom in human tradition, along with manifestation and reflection, perpetually keeps on exhibiting activities of Jivan. This itself is awakening. बढ़िया बढ़िया. So वैसे तो सिंपल सा ही है, but we'll just look at it line by line also. जीवन का स्वरूप विकास पूर्णता के फलन में. विकास पूर्णता के फलन मतलब एक विकास
पूर्णता हो गई है, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जीवन का स्वरूप जो है चैतन्य पद प्रतिष्ठा सहज एक परमाणु है जो भार बंधन और अणुबंधन से मुक्त है. सो जीवन इज एन एटम विच इज एस्टेब्लिश्ड इन द सेंटिएंट प्लेन एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट कंप्लीटनेस. तो बाबा जी हैज यूज्ड 4 वर्ड्स: विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम, जागृति. तो विकास क्रम को डेवलपमेंट प्रोग्रेशन बोल रहे हैं, देन विकास को डेवलपमेंट बोल रहे हैं, देन जागृति क्रम को अवेकनिंग प्रोग्रेशन बोल रहे हैं. तो ये डेवलपमेंट प्रोग्रेशन जो है विकास क्रम है, तो विकास पूर्णता जो है वो डेवलपमेंट कंप्लीटनेस हो गया. So Jivan is an atom which is established in the sentient plane as a consequence of development completeness and is free from gravitational bondage and molecular bondage. ये तो भार बंधन को एक्चुअल में, one straightforward option would be weight bondage, but then maybe weight is nothing but gravity. So इसको gravitational bondage, like there are two things which attract each other and we feel weight because of that. Okay, so ये जो भार बंधन है इसको gravitational bondage बोल रहे हैं. अणु बंधन is straightforward. Atom is परमाणु and molecule is अणु. So this Jivan atom is free from gravitational bondage and molecular bondage. I mean, I personally like this concept. As soon as I heard it first time, when I had never thought about it like this. Jivan is an atom, and then it does. Like what is its unique feature? What is that makes its distinct from other atoms? So other atoms, they bond with each other. Atoms of hydrogen bond with atoms of hydrogen, and atoms of hydrogen bond with other atoms also. So, but Jivan atom, it does not bond with any other atom. It does not bond with another Jivan atom per se in the physical sense. ओके, जीवन जीवन में बॉन्डिंग जो है वो इमोशनल लेवल के ऊपर वी यूज द वर्ड बॉन्डिंग, बट इन द फिजिकल सेंस नो बॉन्डिंग एग्जिस्ट पर से. So this is the uniqueness of Jivan atom. So it is free from gravitational bondage and molecular bondage. I really liked it when I heard it first time, the concept. यही जीवन के नाम से संबोधित है. This has been named as जीवन. भ्रम बंधन से मुक्त होना मोक्ष है. टू बी फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ डिल्यूजन इज मोक्ष. यही जागृति सहज प्रमाण है. दिस इटसेल्फ इज द एविडेंस ऑफ अवेकनिंग. ओके, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन्स है. वी हैव हर्ड देम बिफोर आल्सो. ठीक लग रहा है देव भाई इतना? हाँ जी भैया, स्ट्रेट फॉरवर्ड एज यू सेड. जी ठीक है. वंदना दीदी नमस्ते. जी नमस्ते भैया. दीदी आप भी अपने कमेंट्स देते रहें साथ साथ. हाँ बिल्कुल, जरूर भैया, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है एकदम. जी ठीक है. जीवन में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा अविभाज्य रूप में क्रियाशील है. इस मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि एंड आत्मा, चलिए जब ऐसे आता है, नो प्रेफर टू यूज दिस टाइप. मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि एंड आत्मा आर इनसेपरेबली एक्टिव इन जीवन. अविभाज्य रूप में क्रियाशील है. ये सब निश्चित क्रियाओं के नाम है. All these are names of well-defined activities. वस्तु के रूप में मध्यांश सहित 4 परिवेशों के रूप में क्रियाशील इकाई है. ओके, तो इसमें जो है वस्तु के रूप में मतलब जीवन जो है वो वस्तु के रूप में मध्यांश सहित 4 परिवेशों के रूप में क्रियाशील इकाई है. सो एज ए रियलिटी, जीवन इज एन एक्टिव यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियस एंड 4 ऑर्बिट्स. है ना, मध्यांश सहित 4 परिवेश. इस प्रकार जीवन अपने में चैतन्य पद प्रतिष्ठा सहित मानव परंपरा में समझदारी सहित परावर्तन प्रत्यावर्तन पूर्वक जीवन सहज क्रियाकलापों को प्रकाशित करता ही रहता है. इन दिस मैनर जीवन in itself established in the sentient plane together with wisdom in human tradition along with manifestation
अभी इसको भी चेंज किया है हमने फ्यू वीक्स ago. Like this is something which is evolving. The names are not final. Uh, we were परावर्तन को पहले हम मैनिफेस्टेशन कह रहे थे, अभी इसको प्रोजेक्शन कह रहे हैं. ओके, प्रत्यावर्तन इज रिफ्लेक्शन विच आई डू इंटरनली, परावर्तन इज विच आई डू विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड. तो इसको प्रोजेक्शन कह रहे हैं. जीवन प्रोजेक्ट्स इटसेल्फ. जीवन सहज क्रियाकलापों को प्रकाशित करता ही रहता है. परपेचुअली कीप्स ऑन एग्जिबिटिंग एक्टिविटीज ऑफ जीवन. यही जागृति है. दिस इटसेल्फ इज अवेकनिंग. ठीक है, तो अगेन इट हैज ऑल बीन डिस्कस्ड अर्लियर. उसको थोड़ा सा एक तरह से रिवाइज जैसा कर रहे हैं. any observations, any comments in translation or otherwise? नहीं भैया, एक स्पेलिंग्स को लेकर एक था भैया, जैसे इफ यू लुक एट द परिभाषा संहिता, नो परिभाषा, the app, one good thing I found there was whenever it is ah, the letter, the sound ah, they have used double A's Yes. everywhere. Uh-huh. So I don't know if you want to be consistent with that. Okay, so यहाँ पर किधर है डबल ए? जैसे आत्मा है. Okay. I mean, not necessarily we need to do it now, but then it's just a food for thought. But the way we read it, Atma, ऐसे में मतलब it does not create any confusion also, ना? Like it does not, of course, but then I normally like consistency. consistency. हाँ जी. Okay. So you like double A in the beginning or double A in the end or both places? Double A in the beginning, and generally I also like as double A and as A, because that's how it makes, it differentiates the two sounds. Okay, point noted. Let's think about it. जी. ठीक है, गुड. आगे बढ़ते हैं. वंदना दीदी, इफ यू आर इन ए पोजीशन टू रीड और कभी आपको भी लगे कि एक पैराग्राफ बीच बीच में आप भी पढ़ना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम. जी भैया. तो अभी मतलब तो बाद में करेंगे, अभी करेंगे, कैसे करता है? नहीं, मैं ये पैराग्राफ मैं पढ़ लेती हूँ. ठीक है दीदी, प्लीज. जी. व्यवस्था के मूल वस्तु अस्तित्व में केवल परमाणु ही होना पाया गया है. सत्ता में संपृक्त प्रकृति ही जड़ चैतन्य के रूप में वैभवित है. इनमें से जड़ प्रकृति भार बंधन और अणु बंधन के फलस्वरूप भौतिक रासायनिक रचनाओं में भागीदारी करता हुआ देखने को मिलता है. यही प्रत्येक जड़ परमाणु अपने में व्यवस्था और रचना सहज समग्र व्यवस्था में भागीदारी का साक्ष्य प्रस्तुत करता है. जबकि चैतन्य इकाइयां भार बंधन और अणुबंधन से मुक्त, आशा बंधन से युक्त, आशानुरूप कार्य गतिपथ सहित मनोवेग के अनुपात में गतिशील रहना पाया जाता है. जीवन अपने में गठन पूर्णता के उपरांत अक्षय शक्ति अक्षय बल संपन्न होना देखा गया है. यही परिणाम में के अमृतत्व प्रतिष्ठा का फलन. It has been observed that atom is indeed the fundamental unit of orderliness in existence. Grandeur of nature saturated is omnipotent is in the form of insentient and sentient. Out of these, the insentient nature, as a result of gravitational bondage and molecular bondage, is observed to be participating in physiochemical formation. In this manner, the insentient atom gives proof of orderliness in themselves and participation in overall orderliness in the form of physiochemical formation. While the sentient atom, devoid of gravitational bondage and molecular bondage, but replete with bondage of hope, together with path of working according to hope, is found to be active in proportion to their imagination. It has been seen that after
After constitutional completeness, Jivan becomes endowed with inexhaustible power and inexhaustible strength. This is result of endowment with immortality of constitution. बढ़िया दीदी, थैंक यू। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। व्यवस्था की मूल वस्तु अस्तित्व में केवल परमाणु ही होना पाया गया है। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द एटम इज इंडीड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑर्डरलीनेस इन एग्जिस्टेंस। This also is interesting. It is atom from which everything is made up of, and then extending the logic, Jivan is also is an atom. Okay. Now, in the physico-chemical world, atoms get together, so we get rachnaएं or compositions or formations, and then these compositions eventually decompose or विरचित होती हैं और deform होती हैं. Okay, so rachana virachana keeps on happening. Composition, decomposition, formation, deformation. It keeps on happening in the insentient nature. Okay, in the sentient nature, the Jivan atom remains Jivan atom itself. Okay. Okay, and this is what is immortality. Actually, in that sense, if we see, that is at an initial level, we can see that whenever a formation or a composition gets decomposed, then also it is the composition which is no longer there, but the atom still remains there. Right? So it is the composition which is no longer there, but the atom is still there. In that sense, it may be said in the initial stages that atom itself is immortal. Okay, even in the insentient nature. Okay, although as we go deeper in science, we see that it is not when we understand science deeply, then we know that why it is not being called immortal is that maybe that atom from that composition remains as it is, but eternally it does not remain that atom itself. For example, a hydrogen atom, if it is an hydrogen atom today, will not always remain hydrogen atom. Okay, if a sodium atom, iron atom, gold atom, which is in its current form, will not remain that specific atom forever. Okay, at the time of decomposition, it may remain its structure or constitution, but that constitution is not forever. Okay, in that sense, we can understand mortality or immortality in insentient nature. In sentient nature, it is truly immortal. Okay, it does not bond with anything else. It does not get debonded or unbonded, and its own constitution also does not change. Okay, so this is what is being explained here. सत्ता में संपृक्त प्रकृति ही जड़ चैतन्य के रूप में वैभवित है. Grandeur of nature saturated in omnipotence is in the form of insentient and sentient, जड़ चैतन्य के रूप में. इनमें से जड़ प्रकृति भार बंधन और अनुबंधन के फलस्वरूप भौतिक रासायनिक रचनाओं में भागीदारी करता हुआ देखने को मिलता है. Out of these, the insentient nature, as a result of gravitational bondage and molecular bondage, is observed to be participating in physico-chemical formations. यही प्रत्येक जड़ परमाणु में व्यवस्था और रचना सहज समग्र व्यवस्था में भागीदारी का साक्ष्य प्रस्तुत करता है. In this manner, the insentient atom gives proof of orderliness in themselves and participation in overall orderliness in the form of physico-chemical formations. जबकि चैतन्य इकाइयां भार बंधन और अणुबंधन से मुक्त, आशा बंधन से युक्त. While the sentient atom, devoid of gravitational bondage and molecular bondage, but replete with bondage of hope, आशानुरूप कार्य गति पथ सहित मनोवेग के अनुपात में गतिशील रहना पाया जाता है. It's a little tricky here. Together with the path of working according to hope.
is found to be active in proportion to their imagination. तो थोड़ा सा पहले फ्रेजेस देख लेते हैं। मनोवेग के अनुपात में, ओके, तो मनोवेग के अनुपात में मीन्स जीवन एटम, द वे आई हैव इंटरप्रेटेड इट इज यू नो हाउ मच इज इट्स एक्टिवनेस, it is in proportion to its imagination. Okay, so as the imagination expands, okay, uh, uh, its activeness also expands. That is in proportion to their imagination. This is the phrase for मनोवेग के अनुपात में, is found to be active, गतिशील रहना पाया जाता है। अब आशानुरूप कार्य गति पथ, इसको लिख रहे हैं द पाथ ऑफ वर्किंग अकॉर्डिंग टू होप। तो कार्य गति पथ जो है, दैट इज ए फ्रेज विच हैज बीन यूज्ड एट वेरियस प्लेसेस in Madhyas Darshan. So कार्य गति पथ is the phrase which so far I have been using is the path of working. So when we look at a Jivan atom, now a Jivan, a human being is combined form of body and Jivan. Okay, it is the Jivan which keeps the body alive. Okay, so body has its boundaries, body has its structure. So the Jivan atom, it moves around in the body. Okay, that moving around in the body, that is its karya gati path. Okay, its path of working, or its area of working, or its area of functionality. Okay, this is what it has to do to keep the body alive. Okay, so कार्य गति पथ को पाथ ऑफ वर्किंग बोला है। एंड आशानुरूप, यहाँ पर नया वर्ड आ गया है, आशानुरूप कार्यगत पति। तो आशा को आशा विचार इच्छा में हम लोग होप कह रहे हैं, होप, थॉट एंड डिजायर। सो आशानुरूप कार्यगति पथ, so that कार्यगति पथ is dependent on the आशा, सुखी रहने की आशा, जिंदा रहने की आशा। तो उसको एक तरह से मिलाकर कहा द पाथ ऑफ वर्किंग अकॉर्डिंग टू होप, या बेस्ड ऑन होप, या कुछ और। एक बार आगे भी पढ़ते हैं। जीवन अपने में गठन पूर्णता के उपरांत अक्षय शक्ति, अक्षय बल संपन्न होना देखा गया है। It has been seen that after constitution completeness, जीवन becomes endowed with inexhaustible power and inexhaustible strength. यह परिणाम के अमरत्व प्रतिष्ठा का फलन ही है। This is the result of endowment of immortality of constitution. बताइए। May take some time to sink in. जी, दो suggestions हैं भैया, but I am not very sure how to actually correct it, correct in this sense, change it. um, एक तो ये जो सेकंड लाइन है, सत्ता में संपृक्त प्रकृति ही जड़ चैतन्य के रूप में वैभवित है. So we started this line with the word grandeur. My comment here is that the subject is Prakriti. Whereas if we start with grandeur, the subject becomes grandeur. ठीक है, ओके ओके, तो बताइए। बस वही दिक्कत हो जाती है. हाँ, I also struggled. वो, you know, I could not translate वैभवित, मतलब I spent a lot There of is a time on word that. actually, yeah. There is a word. It is grandiose. हाँ, I used that. I used that. I toyed with that also. So let me put it this way: nature saturated in omnipotence is grandiosed in the form of insentient and sentient. अरे वाह, ये सही लग रहा है मुझे तो. Yeah. Is it Okay, a word? no,
Now when I looked at it, actually grandiose is not a verb actually. It is a noun. Yeah, it is Okay. actually an आप भी adjective. देखो. Adjective. It's an adjective. Okay, yes. Grandiose. So maybe grandiose कर देते हैं. अच्छा, हाँ ये भी ठीक है. है ना? Grandiose. This was the earlier version. Uh, I also wrote this phrase. I spent हाँ तो some ये time on that. बेटर लग रहा है भैया मुझे. ये better लग रहा है. ठीक है. ठीक है. I was also not sure. So ठीक है. This is the first one. What is the next one? सेकंड इज ये जो ये नेक्स्ट पैरा जहाँ शुरू हो रहा है यही प्रत्येक जड़ परमाणु Hmm. इन दिस मैनर. Hmm. एक्चुअली इंग्लिश में भी ये लाइन ना नॉन स्टॉप टाइप हो गई है. सो Yes. फर्स्ट थिंग I don't know if it's really needed in this term in this manner. If Yes. we can Yes. start Yes. with the insentient itself. हाँ मतलब जो है ना इनसेंटिएंट से एक तरह नया सेंटेंस हो जाता है. इट वुड बी लाइक प्रत्येक जड़ परमाणु. अभी यहाँ पर ये यही जो है ना दिस इज द कनेक्शन विद द प्रीवियस सेंटेंसेस. ठीक है भैया, सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है. so for that to retaining that connection we can use put some other phrase here but कुछ पिछले सेंटेंसेस से कनेक्शन रहे ये देख रहे. ठीक है भैया, ये चलेगा. या इन दिस मैनर या 10 भी कर सकते हैं 10 जो कर भी. सकते हैं या इन दिस मैनर भी चलेगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं. यहाँ ये दिस वाज नॉट द मेन पॉइंट एनीवे. ठीक है. ये एक था कि प्रत्येक की जगह हम लोग अगर ईच लिखना चाहें तो या ये हम्म. भी ठीक है. हम्म. ठीक है. दिस इज गुड. ओके. ईच एंड एवरी मतलब अगर ये एक नॉर्मल फ्रेज है ऐसा कर दें क्या. ईच एंड एवरी इंसेंटिएंट एटम. हर एक. प्रत्येक. या जी, सिर्फ ईच. या इट सिर्फ साउंड्स एवरी. लाइक. वैसे ईच एंड एवरी हम लोग टिपिकल वो इंडियन इंग्लिश टाइप होती है अच्छा. वैसे. हाँ, अच्छा. ओके. ऐसा कुछ ओके. होता नहीं है जनरली. ठीक है. अच्छा. आई डिडंट नो दैट. ठीक है. ठीक है. ठीक है. ईच. अब मेन पॉइंट जो मेरा था कि इसको हम लोग यहाँ पे बंद कर देते हैं ठीक इधर. है. हाँ जी. वाइल को हटा देते हैं. हाँ जी. अब ठीक है. अब ठीक है भैया, ये थोड़ा दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स अब थोड़ा पढ़ने में इजी भी लगता है. ठीक है. इट्स गुड. मतलब मेरे को भी कुछ कुछ लग रहा था बट आई डेंट डेल्व डीपर इनटू दैट. यहाँ पर जो ना जैसे ये जबकि है ना जबकि को आई हैव सीन इन बाबा जी स्टाइल. ये ऑन द अदर हैंड वाला सेंस में जबकि काफी बार जो है ना वो यूज किया बाबा जी ने. हम लोग जब जबकि यूज करते हैं जब दिल्ली में बैठे हुए मोस्टली तो जबकि जो है वो एक फ्लो में आता है तो बीच में उस जबकि से पहले फुल स्टॉप नॉर्मली नहीं रहता है. कॉमा टाइप रहता है. हाँ जी, हाँ जी. सो बट यू आर राइट. मतलब यहाँ पर ये ऑन दी अदर हैंड वाला जो है. बढ़िया. ठीक है. वंदना दीदी एनी ऑब्जर्वेशंस एनी कमेंट्स. नहीं भैया, बढ़िया हो गया. ये मुझे भी पढ़ते हुए लग रहा था कि कहीं कुछ जी. मिसिंग सा हो रहा है. देव भाई ने जी. बिल्कुल करेक्ट कर दिया जी. उसको. जी. जी. देव भाई हैज बिकम ए सीजन्ड या. कोलैबोरेटर. जी. पूनम दीदी नमस्ते. गुड मॉर्निंग. नमस्ते भैया, नमस्ते. नमस्ते. नमस्ते नमस्ते. सभी को. गुड. तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं. हम्म. पूनम दीदी जब if you feel like reading some paragraph whenever like you are free to volunteer. जी भैया, ठीक. ओके भैया. अभी पढ़ना चाहते हैं बाद में पढ़ेंगे कैसे करना है. थोड़ा बाद में, मैं अभी थोड़ा बाद बिजी में. हूँ, भी रही ठीक हूँ है. अभी. जी. ठीक है. देव भाई आप कंटिन्यू करेंगे. श्योर श्योर.
आशा बंधन से जीवनी क्रम परंपरा को आरंभ किया हुआ जीवन आशा से विचार, विचार से इच्छा बंधन तक भ्रमित विधि से मानव कार्यकलापों को प्रस्तुत करता है। इच्छाएं चित्रण कार्य को, विचार विश्लेषण कार्य को और आशा चयन क्रिया को संपादित करता हुआ मानव परंपरा में भय, प्रलोभन और आस्था में जीता रहता है। प्रिय हित लाभ संबंधी संग्रह सुविधा भोग द्वारा प्रलोभन के अर्थ को युद्ध, शोषण, द्रोह, विद्रोह, संघर्ष, ये सब भय को और भक्ति विरक्ति पूर्वक आस्था, त्याग, वैराग्य को मानव ने प्रकाशित किया है। यह परंपरा सहज विधि से ही होना पाया जाता है। परंपरा में इसी के लिए शिक्षा संस्कार, उपदेश, शासन पद्धति, संविधान भी स्थापित रही है। इसी क्रम में सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा संबंधी और सामरिक सामग्रियों के रूप में अनेकानेक चित्रण कार्य संपन्न हुआ। ऐसे कुछ यंत्र संचार के लिए मार्ग और सेतु का चित्रण हुआ। इसी से संबंधित अनेकानेक वस्तु सामग्री यंत्रों का चित्रण मानव ने किया है। Having started its journey from bondage of hope in the tradition of living world progression, Jivan moves on to bondage of thoughts and then to bondage of desire, exhibiting and presenting deluded deeds all along. With desires fulfilling the visualization activity, the thoughts fulfilling the analyzing activity, and the hopes fulfilling the selecting activity, it, that is Jivan, continues to live in human tradition in fear, temptation, and faith. Temptation in the form of accumulation, comforts, and indulgences related to pleasant, health, and profit perspectives, fear in the form of wars, exploitation, offense, revolt, and conflict, and faith in the form of devotion and detachment, and renunciation and reclusion. All this has been exhibited by humans. All this happens by way of tradition only. Education, preachings, methods of governance, and constitutions have also been established in human tradition precisely for these. On this course, various visualizations of common aspirations, special aspirations, and war apparatus got formed in human tradition. Humans also formed images of telecommunications, roads, and bridges. Humans accomplished visualization related to all such topics, all such objects, apparatus, and equipment. बढ़िया भैया, वैसे तो सिंपल सा ही है, बट आई थिंक जी, दैट मे बी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाएगी व्हेन वी विल बी रीडिंग इट। आशा बंधन से जीवनी क्रम परंपरा को आरंभ किया हुआ जीवन आशा से विचार, विचार से इच्छा बंधन तक भ्रमित विधि से मानव कार्यकलापों को प्रस्तुत करता है। ओके, सो ये जो जीवनी क्रम है, बेसिकली नो व्हाट हैपेंस इज दैट जीवन is is there in the animal order as well as in the in the knowledge order in humans। ठीक है, तो जीवनी क्रम एक्चुअली encompasses or includes or covers both of these। Okay, so up to the material order and plants order, there is no Jivan which is driving units of these two orders. It is only from animal order that evidence of Jivan is seen, and then it continues till humans. So आशा बंधन से जीवनी क्रम परंपरा को आरंभ किया हुआ जीवन है ना। सो बिगिनिंग फ्रॉम एनिमल्स एंड अप टू द ह्यूमंस, इस पूरी जर्नी को जब हम देख रहे हैं तो उसमें कह रहे हैं इसमें जीवन शुरू में आशा बंधन में रहता है। इन एनिमल्स देयर इज होप टू सर्वाइव, होप टू लिव। ओके,
and then in humans it is like hope to live with happiness, and then this also is not sufficient, है ना। वो भ्रमित विधि से आगे चलते हुए आशा बंधन से फिर विचार बंधन से इच्छा बंधन, ये सब कुछ जो है ये भ्रमित विधि से मानव कार्यकलापों को प्रस्तुत करता है। So having started its journey from bondage of hope in the tradition of living world progression। ओके, अब ये जीवनी क्रम जो है ना, इसको इसको एक टर्म देना है, तो इसको लिविंग वर्ल्ड प्रोग्रेशन जो है अभी कह रहे हैं, विच बिगिंस फ्रॉम द इनिशियल स्टेजेस ऑफ एनिमल्स राइट अप टू द ह्यूमन ऑर्डर। So having started its journey from bondage of hope in the tradition of living world progression, Jivan moves on to bondage of thoughts, which is vichar bandhan, and then to bondage of desires, which is ichha bandhan. Exhibiting and presenting deluded deeds all along, है ना। भ्रमित विधि से मानव कार्यकलापों को प्रस्तुत करता है। इस सारे में इच्छा बंधन तक कर क्या रहा है इस सारी जर्नी में? इस सारी जर्नी में इट एग्जिबिट्स एंड प्रेजेंट्स डिल्यूटेड डीड्स, भ्रमित कार्यकलापों को प्रस्तुत करता है। इच्छाएं चित्रण कार्य को, विचार विश्लेषण कार्य को और आशा चयन कार्य को संपादित करता हुआ मानव परंपरा में भय, प्रलोभन और आस्था में जीता रहता है। With desires fulfilling the visualization activity, thoughts fulfilling the analyzing activity, and hopes fulfilling the selecting activity, the Jivan continues to live in human tradition in fear, temptation and faith। है ना? इच्छाएं चित्रण कार्य को संपादित करती हैं, एकम्प्लिश करती हैं, विचार विश्लेषण कार्य को, आशा चयन कार्य को करता हुआ मानव परंपरा में, अभी तक ये भ्रमित मानव की बात हो रही है, भ्रमित मानव परंपरा में, ऑल्दो इट इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड हियर, में भय, प्रलोभन और आस्था में जीता रहता है। दोबारा देख लेते। विद डिजायर्स फुलफिलिंग द विजुअलाइजेशन एक्टिविटी, थॉट्स fulfilling the analyzing activity, and hopes fulfilling the selecting activity, it or the Jivan continues to live in human tradition in fear, temptation and faith। भय, प्रलोभन और आस्था में जीता रहता है। प्रिय हित लाभ संबंधी संग्रह सुविधा भोग द्वारा प्रलोभन के अर्थ को युद्ध, शोषण, द्रोह, विद्रोह, संघर्ष, ये सब भय को और भक्ति विरक्ति पूर्वक आस्था, त्याग, वैराग्य को मानव ने प्रकाशित किया है। तो ये तीन चीज कह रहे हैं, और इन तीनों को अब हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। प्रिय हित लाभ संबंधी संग्रह सुविधा भोग द्वारा प्रलोभन के अर्थ को, तो प्रलोभन को बोला है टेम्पटेशन। टेम्पटेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्यूमुलेशन, कंफर्ट्स एंड इंडल्जेंसेस रिलेटेड टू प्लेजेंट हेल्थ एंड प्रॉफिट पर्सपेक्टिव। प्रिय हित लाभ को बोला प्लेजेंट हेल्थ एंड प्रॉफिट दृष्टिकोण को, है ना, इन सबको जो है उनको दृष्टियों को पर्सपेक्टिव्स बोला है। सो टेम्पटेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्यूमुलेशन, कंफर्ट्स एंड इंडल्जेंसेस, संग्रह सुविधा भोग related to pleasant health and profit perspectives, युद्ध, शोषण, द्रोह, विद्रोह, संघर्ष, ये सब भय को, fear in the form of wars, exploitation, offense, revolt and conflict, और भक्ति विरक्ति पूर्वक आस्था, त्याग, वैराग्य को मानव ने प्रकाशित किया है। एंड फेथ इन द फॉर्म ऑफ डिवोशन एंड डिटैचमेंट, भक्ति विरक्ति को डिवोशन एंड डिटैचमेंट, त्याग वैराग्य को रिनंसिएशन एंड रिक्लूजन। ऑल दिस हैज बीन एग्जिबिटेड बाय ह्यूमंस, इन सबको मानव ने प्रकाशित किया है। ठीक है, ये लिटिल ट्रिकी सेंटेंस, एक बार पूरा देख लेते हैं, देन वील रिव्यू इट। यह
परंपरा सहज विधि से ही होना पाया जाता है। ऑल दिस हैपन्स बाय वे ऑफ ट्रेडिशन ओनली, है ना, परंपरा सहज विधि से, बिकॉज आवर एंसेस्टर्स वर डूइंग इट, दे पास्ड इट ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन आल्सो लिव्ड अकॉर्डिंग टू दैट ओनली एंड पास्ड ऑन delusion only to the next generation. So basically all this delusion is getting passed on from generation to generation. यह परंपरा सहज विधि से, ये सारा भ्रम जो है ये परंपरा सहज विधि से हो रहा है। ऑल दिस हैपेंस बाय वे ऑफ ट्रेडिशन ऑल्सो। परंपरा में इसी के लिए शिक्षा, संस्कार, उपदेश, शासन पद्धति, संविधान भी स्थापित रही है। Education, preachings, methods of governance and constitutions have also been established in human tradition precisely for this. इसी क्रम में सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा संबंधी सामरिक सामग्रियों के रूप में अनेकानेक चित्रण कार्य संपन्न हुआ है। तो सामरिक सामग्रियां जो है ये बेसिकली रिलेटेड, इक्विपमेंट्स रिलेटेड टू मिलिट्री और वॉर मशीनरी, इस तरह की चीज जो है वो कह रहे हैं। So on this course, various visualizations of common aspirations, special aspirations, and war apparatus got formed in human tradition. है ना, सामान्य आकांक्षा, महत्वाकांक्षा संबंधी और सामरिक सामग्रियों के रूप में अनेकानेक चित्रण कार्य मानव परंपरा में संपन्न हुआ है ना। वो कल्पना में आया, एक विजुअलाइजेशन हुआ है। पक्षी ऊपर उड़ते हैं तो ह्यूमंस में आल्सो बी एबल टू फ्लाई, पहले कल्पना में आया, फिर साइंस ने उस पर काम किया, है ना। फिश गोज अंडर वाटर, इफ ह्यूमंस कैन आल्सो गो अंडर वाटर, वो कल्पना में आया तो फिर सबमरीन्स बन गए, राइट। तो ऐसा करके ये पहले चित्रण बनता है, कल्पना में आना मतलब जिसको कह रहे हैं चित्रण कार्य संपन्न हुआ। चित्रण कार्य को कह रहे हैं वेरियस विजुअलाइजेशंस, है ना, देवर देयर। ऐसे कुछ यंत्र संचार के लिए मार्ग और सेतु का चित्रण हो। तो इसको कह रहे हैं ह्यूमंस आल्सो फॉर्म्ड इमेजेस ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, रोड्स एंड ब्रिजेस, है ना। ये सेंटेंस मेरे को अपने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कहीं पे कुछ कॉमा, फुल स्टॉप वगैरह होने से बेटर होता, लेकिन द की वर्ड्स विच आई कैन फाइंड हियर इज, एक तो मार्ग मेरे को दिख रहा है, तो मार्ग मेरे को रोड जैसा लगा, सेतु जो है ये ब्रिजेस जैसा लगा, और यंत्र संचार जो है वो टेलीकम्युनिकेशंस जैसा लगा। तो ऐसे कुछ यंत्र संचार के लिए मार्ग और सेतु का चित्रण हुआ। ह्यूमंस ऑल्सो फॉर्म्ड इमेजेस ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, रोड्स एंड ब्रिजेस। इसी से संबंधित अनेकानेक वस्तु, सामग्री, यंत्रों का चित्रण मानव ने किया है। Humans accomplished visualization related to all such objects, apparatus, and equipment. ठीक है। सो इन दिस चैप्टर बेसिकली वी स्टार्टेड दिस न्यू चैप्टर टुडे, दोबारा से देख लेते हैं। ये आत्मा, जीवन, आत्मा इज इनसेपरेबल इन एंड फ्रॉम जीवन। ठीक है। तो बाबा जी इज सॉर्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग इन डिटेल the activities, like the, let's say, how the functionality of जीवन। ओके, सो ये जितना अभी हमने पढ़ा इसमें जैसे ये विजुअलाइजेशन वाला एस्पेक्ट जो है वो वाला एक तरह से हाईलाइट होगा। बताइए देव भाई, पूनम दीदी, एनी कमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस? भैया विचार शब्द के साथ में कब हमने शायद बंधन शब्द नहीं देखा है, इज दैट करेक्ट? हाँ, क्योंकि हिंदी में भी नहीं आया है, लेकिन है तो बंधन ही। ऐसा ऐसा मुझे लगा, दोबारा से पढ़ता हूँ। आशा बंधन से जीवनी क्रम में परंपरा को आरंभ किया हुआ जीवन, आशा से विचार, विचार से इच्छा बंधन। तो मैं इसको आशा, मतलब ये शुरू देखो आशा बंधन से शुरू हुआ है ना। तो मैं इसको ऐसे पढ़ रहा हूँ कि फिर आशा से विचार मतलब आशा बंधन से विचार बंधन, फिर विचार से इच्छा बंधन मतलब विचार बंधन से इच्छा बंधन। तो ये बंधन का प्रमोशन हो रहा है एक तरह से, ऐसा मुझे लगा। ठीक है भैया,
ओके, है ना। मतलब मुझे ये और जगह पे भी ये वाला कॉन्स्ट्रक्ट आया ही है ना। ये सब जो है इस यहाँ तक जो है भ्रमित विधि से मानव कार्यकलापों को प्रस्तुत करता है। तो वो भ्रमित विधि से क्या है, आशा बंधन, विचार बंधन, इच्छा बंधन, दिस वी हैव सीन एट मेनी अदर प्लेसेस आल्सो। तो मेरे को तो वैसा लगाया। ठीक है, ठीक है भैया। पर एक्चुअली पास्ट में भी विचार बंधन मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं नहीं, था। काफी बार आया, काफी बार आया, ओके, ठीक काफी है बार भैया। आया। ऑलराइट, अ, एंड सब सॉरी। अगर मैं इसको मैं वो करूंगा, थोड़ा सा सर्च करूंगा तो मिल भी जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले हिंदी में, यू हैव दिस दिस हाँ जी, गूगल हाँ जी। डॉक्स विद यू। आप ना विचार बंधन को सर्च करना, आपको इसमें कई बार उसका रेफरेंस मिलेगा। विचार बंधन मानव व्यवहार दर्शन में भी है, विचार बंधन, आशा बंधन, विचार बंधन, इच्छा बंधन। ठीक है भैया। ऑलराइट, एंड इसी लाइन में एक्चुअली जो ये भ्रमित विधि से मानव कार्यकलाप, हम्म। तो हमने इसको डिल्यूडेड डीड्स बोला है। तो कार्यकलाप डिल्यूडेड हैं कि तो उनका हाँ, तरीका करने का डिल्यूडेड है? हाँ तो उसको कर सकते हैं। मतलब मेरे को लगा कि कोई इतना डीप मीनिंग नहीं है शायद। भ्रमित विधि से मानव कार्यकलापों को प्रस्तुत करता है ना। तो ये ऐसा मैंने इसको रीड किया है। तो क्या कर सकते हैं इसमें, एंड प्रेजेंटिंग ह्यूमन प्रेजेंटिंग। डीड्स इन डिल्यूशनल मैनर। ओके, ओके। तो एक्चुअल में जो है बेसिकली क्या है, ये जब ये जीवनी क्रम से शुरू हुआ है तो ये एनिमल ऑर्डर से शुरू हुआ है। अब यहाँ पर विचार बंधन, इच्छा बंधन तक आते आते अब मानव आ गया है बेसिकली। तो यहाँ पर मानव वर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया। यहाँ पर तो जो है वो एनिमल्स भी जब शुरू हुआ है तो वो भी आ रहे हैं। जीवन मूव्स ऑन टू दिस दिस एंड। वे अगर ये इनसिग्निफिकेंट है तो कोई इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट दैट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू बी एज नहीं नहीं, क्लोज टू। लेकिन हाँ हाँ वो ठीक है। मैं इवेंट इसको ऐसे लिखते हैं, इवेंचुअली लीडिंग टू ह्यूमंस deeds in a deluded manner। मतलब ह्यूमन डीड्स इन डिल्यूडेड मैनर या डिल्यूडेड ह्यूमन डीड्स, मतलब वन एंड द सेम थिंग है शायद, है। ह्यूमन डीड्स इन डिल्यूडेड मैनर या डिल्यूडेड ह्यूमन डीड्स। ओके, आई एम फाइंडिंग दिस क्लोजर टू दिस व्हाट। क्लोजर, ठीक है, ठीक है ना। तो ये ठीक है, ठीक है। ये दिस आई ऑल्सो लाइक दिस, दिस इज गुड। और बताइए। आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम मी भैया। पूनम दीदी, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? नहीं भैया, इट्स सो गुड। ठीक है, आगे। पूनम दीदी, यू वांट टू रीड? भैया, कैन आई हैव जस्ट 5 minutes? हाँ हाँ, आराम से, कोई प्रेशर भी नहीं है। मतलब इफ यू आर नॉट ओके टुडे वी कैन, आप एक बार बता देंगे, दैट आल्सो इज ओके। यस यस भैया, आई श्योरली डू इट। ठीक है। देव भाई, आप श्योर शुरू श्योर। करेंगे। ठीक। जीवनी क्रम जीवों में वंशानुसंगीय स्वीकृति के रूप में देखने को मिलता है। यही आशा बंधन का कार्यकलाप है। वंशानुसंगीय कार्य में
उस वंश का कार्यकलाप निश्चित रहता है, तभी जीवावस्था व्यवस्था के रूप में गण्य हो पाता है। ऐसे जीव शरीर जो वंशानुसंगीय निश्चित आचरण को प्रस्तुत करते हैं, उनमें समृद्ध मेधस का होना पाया जाता है। ऐसी वंशानुसंगीय रचना क्रम में मानव शरीर भी स्थापित है। उनमें समृद्ध सॉरी इसकी परंपरा भी देखने को मिलती है। उल्लेखनीय मुद्दा यही है, मानव परंपरा में निश्चित आचरण स्पष्ट नहीं हो पाया। इसका कारण मानव ने तीनों प्रकार के बंधनवश जीवों के सदृश जीने का प्रयत्न किया, जबकि मानव अपने मौलिक विधि से ही जीने की प्रेरणा बना रहा। इसी क्रम में आचरणों की विविधता, विचारों की विविधता, इच्छाओं की विविधता अनेकता का कारण बना। इसलिए केवल आशा, विचार, इच्छा से मानव में मानवीयता की स्थापना नहीं हो सकी। अथक प्रयास अवश्य किया गया। जीवन के और आयामों का प्रयुक्ति मानव परंपरा में अवश्यंभावी होने के आधार पर ही अनुभव अनुभव मूलक विधि को अनुभव मूलक विधि का स्थापित होना अनिवार्यतम स्थिति बन चुकी है। Living world progression in animal order is seen in the form of acceptance to species conformance. This is the activity of bondage of hope. In species conformance, activities of the respective species remain well defined. It is because of this definiteness, indeed, that animal order is mentioned to be in orderliness. All such animal bodies who exhibit their respective species conformant definite conduct invariably have a developed brain. Human body is also part of such species conformance. Its tradition also is apparent. It is noteworthy that there is no clarity yet about the well defined conduct or humane conduct in human tradition. The reason behind this is that due to the influence of the above mentioned three types of bondages, humans have been living like animals. However, the natural inspiration to live with humaneness persisted. On this course, diversity of actions, diversity of thoughts, and diversity of desires resulted in divisions and fragmentation. Thus, hope, thought, and desire alone could not establish humaneness in human tradition. Although untiring efforts were surely made, usage of the remaining dimensions of Jivan in human tradition is essential to that accomplish that. Thus, establishment of the realization rooted method is now inevitable. बढ़िया भैया, कुछ पॉजिटिव थिंकर्स जो हैं वो इसको बहुत बोल हाईलाइट करते हैं कि विचारों की विविधता, आचरणों की विविधता, अनेकता, ये सब मतलब we should celebrate this, Yes. but there is a but. But yes, how beautifully Babaji has put a balanced critique of all that. Right. Mhm. So good. Good. So if we see now again, we can see relationship with the title of the chapter. Like Asha, Vichar, Ichha. This every person can feel in themselves. Okay. Because in any case, everyone in the tradition is living in this Asha, Vichar, Ichha, mein hope, thought, and desire. Mein. This has not led to our own fulfillment. Okay, social fulfillment is at a societal level is a far off thing. Even at a personal level also, it is not leading to fulfillment. So we have not understood Jivan completely. Okay, we have seen only the first understood, or we have lived as per only the first 4.5 activities of Jivan only.
ठीक है, this is what Babaji has done that build up so far and sort of concluded that इससे काम नहीं चल रहा है 4.5 क्रिया से, आशा विचार इच्छा से। इसको लाइन बाय लाइन भी देख लेते हैं। जीवनी क्रम में वंशानुषंगीय स्वीकृति के रूप में देखने को मिलता है। लिविंग वर्ल्ड प्रोग्रेशन इन एनिमल ऑर्डर, जीवों में है ना, जीवों में मतलब इन एनिमल ऑर्डर इज सीन इन द फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस टू स्पीशीज कन्फॉर्मेंस। ओके, तो ये वंशानुषंगी जो है ये डिस्कस हो ही चुका है पहले। तो देयर आर मेनी स्पीशीज, सो एवरी स्पीशीज हैज ए डेफिनेट और वेल डिफाइंड कंडक्ट। कि एक्चुअली ह्यूमंस have developed ability to live with animal order based on their well-defined conduct only. Okay, well-defined conduct of animals. Based on their conduct itself, humans have decided which animals they will keep with themselves, which will become pet animals or farm animals, and which are the animals which are better off in the wild itself. Okay, they need not come to our villages or farms. So we keep cows and goats and dogs and cats, but we do not keep lions and snakes in our farms and as pets, basically. Okay, so it is based on their well-defined conduct itself that humans have been able to figure it out and live accordingly. यही आशा बंधन का कार्यकलाप है। This is the activity of bondage of hope. Okay, that well-defined conduct in the animal order, this is the activity of hope. वंशानुषंगी कार्य में उस वंश का कार्यकलाप निश्चित रहता है। In species conformance, activities of the respective species remains well defined. तभी जीवावस्था व्यवस्था के रूप में गण्य हो पाता है। It is because of this definiteness indeed that animal order is mentioned to be in orderliness. Okay, it is mentioned, we are categorizing it, is mentioned or it is categorized. Both, I think both is okay. गण्य हो पाता है तो like it is categorized as being in orderliness. That phrase also can be used. ऐसे जीव शरीर जो वंशानुषंगीय निश्चित आचरण को प्रस्तुत करते हैं, उनमें समृद्ध मेधस का होना पाया जाता है। All such animal bodies who exhibit या which exhibit, who आएगा which आएगा, which आना चाहिए, which आना चाहिए, which exhibit their respective species conformant definite conduct invariably have a developed brain. ऐसे वंशानुषंगीय रचना क्रम में मानव शरीर भी स्थापित है। ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सच स्पीशीज कन्फॉर्मेंस। इसकी परंपरा भी देखने को मिलती है। इट्स ट्रेडिशन इज ऑल्सो एपरेंट। उल्लेखनीय मुद्दा यही है, मानव परंपरा में निश्चित आचरण स्पष्ट नहीं हो पाया। इट इज नोटवर्दी दैट there is no clarity yet about the well-defined conduct or humane conduct in human tradition. इसका कारण मानव ने तीनों प्रकार के बंधनवश जीवों के सदृश्य जीने का प्रयत्न किया है। The reason behind this is that due to the influence of the above mentioned 3 types of bondages, humans have been living like animals. इसी क्रम में आचरणों की विविधता, विचारों की विविधता, इच्छाओं की विविधता अनेकता का कारण बना। On this course, diversity of actions, diversity of thoughts, and diversity of desires resulted in divisions and fragmentation. है ना, ये अनेकता का कारण बना। इसलिए केवल आशा विचार इच्छा से मानव में मानवीयता की स्थापना नहीं हो सकी। Thus, hope, thought, and desire alone could not establish humaneness in human tradition. अथक प्रयास अवश्य किया गया, although untiring efforts were surely made. जीवन के और आयामों का प्रयुक्ति मानव परंपरा में अवश्यम भावी होने के आधार पर ही अनुभव मूलक विधि का स्थापित होना अनिवार्यतम स्थिति बन चुकी है ना। तो ये आशा विचार इच्छा के बियॉन्ड जो डायमेंशंस है,
जीवन के और आयाम है ना, एडिशनल डायमेंशंस, जो आशा विचार इच्छा के ऊपर संकल्प और प्रमाण वाला जो है ना, जो बुद्धि और आत्मा वाली बात है, उसकी प्रयुक्ति, उसका डिप्लॉयमेंट, उसका नियोजन जो है मानव परंपरा में अवश्यम भावी होने के आधार पर ही अनुभव मूलक विधि का स्थापित होना अनिवार्यतम स्थिति बन चुकी है। यूजेज ऑफ द रिमेनिंग dimensions of Jivan in human tradition is essential to accomplish that. Thus, establishment of the realization rooted method is now inevitable. बताइए। तो रियलाइजेशन रूटेड मेथड को कैसे देखें कि रियली ये जीवन कैसा है। समवन हैज सीन दैट, हु इज दैट समवन? श्री नागराज जी इज प्रोक्लेमिंग दैट ही इज द वन हु हैज क्लियरली अंडरस्टूड इट। ठीक है, कि ये इसको जो है, सो ही हैज रियली सीन द कंप्लीट जीवन एंड इज प्रोक्लेमिंग दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड इट। Okay, this is actually very unique. Well, once we look at it, we see that science also has flourished on the same concept. There was someone who figured out that there is a law of gravity. Okay, so when Newton figured out law of gravity, before that time, no one else had figured it out. But once Newton figured it out, he presented it to humankind, and today everyone has understood it. Every school going child, college going child, we all have understood the law of gravity because one person understood it. Okay. So here also what is being proposed is one person has seen what is the true form of Jivan. He is presenting it to humankind. If humankind finds it worthwhile, they will adopt it. It will pass on from generation to generation, and we'll see in a few generations that it is widespread. Its acceptance is widespread. Where who created grammar? No, I think that person also figured out. It's very amusing and interesting. We were discussing, who aayega ki which aayega. So when we say body, it's which, and when we say Yes. person, it's who. Who? So Okay. clearly, there is a distinction, Hmm. right? But Hmm. then, मतलब जीने में वो कभी आया नहीं, समझने में वो कभी आया नहीं। ठीक है। Yes, good observation. Good observation. Okay, any comments on the generally understanding of the paragraph or regarding translation? बताइए। देव भाई, पूनम दीदी, शैलेंद्र जी, वंदना दीदी, एनीवन? देव भाई, आप कुछ कह रहे हैं, पहले आप बोलिए। नहीं भैया, आई एम गुड। ओके, यू आर गुड। एनीवन एल्स? भैया नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते शैलेंद्र भाई। हाँ मतलब ये जो अभी पैराग्राफ आपने पढ़ा था ना कि हाँ इसमें जी। केवल विचार इच्छा से मानव में मानवीयता की स्थापना नहीं हो सकती। यहाँ मेरा थोड़ा सा अच्छा लगा कि ये समझ में आया कि देखो वो वो केवल वो अगर जो क्या बोलते हैं विकसित मेधा से इतना हो जाएगा, परंपरा बन यस। जाएगी। लेकिन इसके आगे वाला स्टेप जो है ना वो समझ वाला है। समझ ये बात वाला है, केवल बिल्कुल। आशा विचार इच्छा से वो गाड़ी नहीं निकलेगी। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। इसलिए वो अनेकता वगैरह वो सब वो बहुत अच्छे से यस, कंक्लूड हो गया। बिल्कुल। थैंक यू। जी, ठीक है। एनीवन एल्स? ठीक है, नो कमेंट्स, तो मैं टेक इट एज के ठीक है, तो इसको फिर आगे बढ़ाते हैं। कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं? हाँ, जरूर भैया। यहाँ से पढ़ना ना मुख्यतः। जी। अच्छा, मुख्यतः न्याय धर्म सत्य रूपी दृष्टियों की क्रियाशीलता वृत्ति में एवं फलन स्वरूप
इनका साक्षात्कार चित्त में वृद्धि में बोध और अनुभव की स्वीकृति, आत्मा में इनका अनुभव और अनुभव बोध तथा साक्षात्कार की पुष्टि चिंतन में संपन्न होना ही अनुभव मूलक जागृति पूर्ण स्थिति गति होना स्पष्ट है। अतएव जीवन को विधिवत चेतना विकास मूल शिक्षा विधि से मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद का अध्ययन एवं समझ लेना जीवन ज्ञान का तात्पर्य है। जीवन ही दृष्टा पद में होने के कारण अस्तित्व सहज संपूर्ण दृश्य का दृष्टा होना सहज है। इस प्रकार अनुभव करने वाली वस्तु जीवन है। अनुभव करने योग्य वस्तु अस्तित्व सहज सह अस्तित्व है। प्रमाणित करने योग्य वस्तु हर एक मानव है। प्रमाणित होने के लिए वस्तु अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था है। अस्तित्व सहज सह अस्तित्व में अनुभव ही परम सत्य में अनुभव। Mainly the activation of the perspective of justice, dharma, and truth in the vritti, and consequently their direct perception in chitta, acceptance in enlightenment of realization in buddhi, their realization in atma, and verification of enlightenment of realization and of direct perception of contemplation. It is clear that is indeed the realization rooted completely awakened state and motion. Thus, acknowledge of Jivan to systematically study and understand Jivan by way of consequence, development, value, education, as defined by Madhya Darshan. Coexistence as Jivan itself in the perceiver plane. It is natural for it holistically see, understand the complete sense of the form of existence. In this manner, the reality which attains realization is Jivan. The reality which is realized is existence in the form of coexistence. The reality which is evidence, it can be every human being. The reality which needs to be evidenced is the individual society, universal system. Realization is existence as coexistence. Deed is the realization in ultimate truth. बढ़िया हो गया भैया, थैंक यू हाँ भैया, शैलेंद्र भाई। यहाँ तक था। ठीक है, इसको लाइन बाय लाइन भी देख लेते हैं। हम्म, इसका अभी फर्स्ट लाइन थोड़ा लंबा सा है। मुख्यतः न्याय धर्म सत्य रूपी दृष्टियों की क्रियाशीलता वृत्ति में, है ना, ये ऐसा करके है, मतलब हाउ टू रीड इट ऑल्सो, कहीं कहीं पे कॉमा लगाना। मुख्यतः न्याय धर्म सत्य रूपी दृष्टियों की क्रियाशीलता वृत्ति में एवं फल स्वरूप इनका साक्षात्कार चित्त में। तो जैसे चित्त में के बाद में कॉमा आया, यहाँ पर वृत्ति में के बाद में भी कॉमा, इसको साथ साथ पढ़ते भी चल रहे हैं। मुख्यतया मेनली द एक्टिवेशन ऑफ द पर्सपेक्टिव्स ऑफ जस्टिस धर्मा एंड ट्रूथ। तो पहले जो है वो प्रिय हित लाभ विच वॉज प्रेजेंट हेल्थ एंड प्रॉफिट, वो वाले those perspectives were active in deluded state also. Now that was not complete, that did not lead to humane conduct. So what Babaji is saying here is, what the author is saying, mainly the activation of the remaining perspectives of justice, dharma and truth in vritti, है ना, वृत्ति में, and consequently their direct perception in chit। साक्षात्कार के लिए द इंग्लिश वर्ड विच वी आर यूजिंग इज डायरेक्ट परसेप्शन। साक्षात को डायरेक्ट लिया, परसेप्शन को मतलब उसको समझने वाले पार्ट को लिया।
साक्षात्कार जो है. सो एंड कॉन्सिक्वेंटली देयर डायरेक्ट परसेप्शन इन चित्त, इनका साक्षात्कार चित्त में, बुद्धि में बोध और अनुभव की स्वीकृति. बुद्धि में क्या होगा? बोध और अनुभव की स्वीकृति. एक्सेप्टेंस ऑफ एनलाइटनमेंट एंड रियलाइजेशन इन बुद्धि. आत्मा में इनका अनुभव और अनुभव बोध, देयर रियलाइजेशन इन आत्मा, आत्मा में इनका अनुभव और अनुभव बोध तथा साक्षात्कार की इनका अनुभव और अनुभव बोध तथा साक्षात्कार की पुष्टि चिंतन में. ओके, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं. देयर इज अनदर वर्ड व्हिच आई हैव यूज्ड, corroboration, something like this. I don't know spell that. ठीक है. So either we'll see. Corroboration, like ये जो ना, इसकी पुष्टि होना. पुष्टि होना मतलब like we have some guess or estimate earlier, some kind of an understanding. It gets verified or it gets corroborated or it gets sort of attested by further understanding. तो वो पुष्टि जो है ये चिंतन में. तो साक्षात्कार की पुष्टि चिंतन में. corroboration or verification of enlightenment, of realization and of direct perception, अनुभव बोध तथा साक्षात्कार की पुष्टि चिंतन में, in contemplation. संपन्न होना ही अनुभव मूलक जागृति पूर्ण स्थिति गति होना स्पष्ट है. इट इज क्लियर दैट दिस इज इंडीड द रियलाइजेशन रूटेड कंप्लीटली अवेकन स्टेट एंड मोशन. तो हिंदी में स्थिति गति काफी आता है. स्थिति गति के कीवर्ड्स हम लोगों ने इंग्लिश में स्टेट एंड मोशन जो है ये लेकर के चल रहे हैं. तो जब भी स्थिति गति आएगा मोस्टली आप देखेंगे स्टेट एंड मोशन जो. तो ये जो है ये आगे वाली एक्टिविटीज जो है, जो रिमेनिंग एक्टिविटीज, उसके बारे में हल्का सा कहा है. बाकी पूरे मध्यस्थ दर्शन में काफी जगह में डिटेलिंग है, इस बुक में भी आगे चल के आएगी, लेकिन इन लाइंस में थोड़ा सा जो है ये बोला कि ये वाला पार्ट अभी रिमेनिंग में है. अतएव जीवन को विधिवत चेतना विकास मूल्य शिक्षा विधि से मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद का अध्ययन एवं समझ लेना जीवन ज्ञान का तात्पर्य है. दस नॉलेज ऑफ जीवन मीन्स, जीवन ज्ञान का तात्पर्य है तो लिख दिया. दस नॉलेज ऑफ जीवन मीन्स टू सिस्टमेटिकली स्टडी एंड अंडरस्टैंड जीवन. जीवन को विधिवत, है ना, विधिवत अध्ययन कर लेना एवं समझ लेना. अध्ययन कर लेना एवं समझ लेना, इसको आ गया स्टडी एंड अंडरस्टैंड. टू सिस्टमेटिकली स्टडी एंड अंडरस्टैंड जीवन चेतना विकास मूल्य विधि शिक्षा विधि से, बाय वे ऑफ कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट वैल्यू एजुकेशन. चेतना विकास मूल्य शिक्षा को कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट वैल्यू एजुकेशन. और फिर साथ में मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद एज डिफाइंड बाय मध्यस्थ दर्शन कोएक्सिस्टेंशियलिज्म. जीवन ही दृष्टा पद में होने के कारण अस्तित्व सहज संपूर्ण दृश्य का दृष्टा होना सहज है. As Jivan itself is in the perceiver plane, it is natural for it to holistically see or completely see or understand the complete scene. है ना, जो दृश्य है ना, तो संपूर्ण दृश्य है ना, तो दृष्टा भी हो गया, दृश्य भी हो गया, तो उसको सी कह रहे थे तो इसको सीन कह दिया. तो अंडरस्टैंड द कंप्लीट सीन इन द फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस. इस प्रकार अनुभव करने वाली वस्तु जीवन है. इन दिस मैनर द रियलिटी विच अटेन्स रियलाइजेशन इज जीवन. एक्चुअली इसको ऐसा कर सकते हैं, जीवन इज द रियलिटी विच अटेन्स रियलाइजेशन. अनुभव करने योग्य वस्तु अस्तित्व सहज सह अस्तित्व है ना. सो द रियलिटी in which realization occurs, that is jivan, but what is that is to be realized. So the whole existence has to be. So what in reality is existence? If that reality I understand as it is, then I have realized the existence.
So the reality which is realized is existence in the form of coexistence. प्रमाणित करने योग्य वस्तु हर एक मानव है. The reality which evidences it can be every human being. प्रमाणित होने के लिए वस्तु अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था है. The reality which needs to be evidenced is the indivisible society universal system. अस्तित्व सहज सह अस्तित्व में अनुभव ही परम सत्य में अनुभव है. Realization in existence as coexistence indeed is the realization in ultimate truth. और फिर इसके बाद में जीवन ज्ञान को भी बिल्कुल परिभाषित कर दिया कि एक्चुअल में जीवन ज्ञान किसको कह रहे हैं. जीवन रचना मतलब वन लाइक व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीवन. जो कह रहे हैं कि न्यूक्लियस में आत्मा है एंड देयर आर 4 ऑर्बिट्स मन वृत्ति चित्त एंड बुद्धि. दिस वाज रिटन इन द फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स. तो एक तो ये कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीवन. ओके, चैतन्य पद. और जीवन क्रियाकलापों का निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण. ओके, सो ये निरीक्षण को जो है हमने इंस्पेक्शन कर दिया है. अब इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन एंड सर्वे ऑफ एक्टिविटीज ऑफ जीवन. जीवन क्रियाकलापों का निरीक्षण परीक्षण एंड सर्वेक्षण, इन दोनों को मिलाकर के बोला जीवन ज्ञान. सो दिस प्लस दिस is equal to knowledge of जीवन. So one, what is the constitution of जीवन? Second, how it functions. This together is knowledge of जीवन. बताइए ट्रांसलेशन में, अंडरस्टैंडिंग में, एनी ऑब्जर्वेशंस, एनी कमेंट्स? Yeah, it's very clear. ओके दीदी. It's very clear and easy to understand also. जी जी जी. आई थिंक बढ़िया भैया. ठीक है. जी. ठीक है, आई थिंक वी हैव टाइम. एक पैराग्राफ और भी कर सकते हैं. पढ़ लिया जाए इसको. जी भैया, इफ यू कैन स्क्रॉल डाउन अ बिट भैया, और ये छोटा वाला. हाँ, इसको भी कर लेते हैं. ठीक है. हाँ Can I read आप भैया? हाँ हाँ, अच्छा, पूनम दीदी आप कीजिए. देव भैया और शैलेंद्र भैया, शायद आपका परिचय कराया था कि नहीं कराया था. पूनम दीदी ना अभी हापुड़ में अध्ययन शिविर हुआ था ना, तो इसमें आई थी अपने हस्बैंड के साथ में. बोथ ऑफ देम लिव इन कानपुर एंड गहरे से जीवन विद्या को समझने की कोशिश कर रहे हैं. किया भी है इन्होंने. तो वहीं पे बात हुई थी. तो शी इज नाउ पास्ट 2-3 सेशंस शी हैज बीन कमिंग. जी पूनम दीदी. जी भैया, जीवन ज्ञान से पढ़ना है. जी जी दीदी. जीवन ज्ञान के संबंध में निर्भ्रम और जागृत होने के पहले बुद्धिजीवी विद्वान कहलाने वाले व्यक्तियों में यह शंका होना उनकी अवस्था के अनुसार स्वाभाविक है कि जीवन ही जीवन को कैसे देख पाएगा और इसका प्रमाण क्या होगा. इसके उत्तर में यह देखा गया है कि जीवन रचना अपने स्वरूप में गठन पूर्ण परमाणु में परमाणु के रूप में 4 परिवेशीय और केंद्रीय अंशों सहित एक निश्चित और सार्थक रचना है. इसमें हर परिवेश और केंद्रीय अंश सभी क्रियाशील रहते हैं. इस तथ्य के रूप में नाम के लिए मध्यांश केंद्रीय अंश को आत्मा, प्रथम परिवेशीय अंशों को बुद्धि, द्वितीय परिवेशीय अंशों को चित्त, तृतीय परिवेशीय अंशों को वृत्ति और चतुर्थ परिवेशीय अंशों को मन नाम दिया है. Before becoming delusionless
and awakened about the knowledge of Jivan, some so-called learned people and scholars, depending on their stage, may have a doubt regarding how indeed will Jivan be able to see the Jivan and what will be its evidence. Its answer is that Jivan in itself is a definite and meaningful entity in the form of a constitutionally complete atom having particles in the nucleus and in four orbits. In this, all the orbital and central particles remain active. For the purpose of nomenclature, the nucleus central particle has been named as Atma, particles in first orbit as Buddhi, particles in second orbit as Chitta, particles in third orbit as Vritti, and particles in fourth orbit as Man. अस्तित्व सहज रूप में ये सब वस्तुएं जो सदा सदा वास्तविकता को प्रकाशित किया करते हैं, जीवन अस्तित्व सहज वस्तु है। जीवन रचना सूत्र भी सहअस्तित्व सहज विधि से ही रचित रहना देखा गया है और हर व्यक्ति अध्ययन पूर्वक समझ सकता है। देखने का तात्पर्य समझना ही है। All the realities in existence ceaselessly exhibit realness in a non-mysterious way. Jivan is also an existential reality. It has been seen that the constitution of Jivan also happens naturally by way of coexistence, and every person can understand it by way of study. To see means to understand. आगे भी ये है क्या? कर दीजिए, आगे वाला भी कर दीजिए। ठीक। जागृत मानव में ही चार परिवेशीय और केंद्रीय अंश सहज विधि से रचित रचना रूप में क्रम से मन वृत्ति में, वृत्ति चित्त में, चित्त बुद्धि में, बुद्धि आत्मा में और आत्मा सहस्तित्व में अनुभूत होना देखा गया है। अनुभूत होना ही समझदारी की परिपूर्णता और उसकी निरंतरता है। Only in awakened Jivan, naturally constituted entity in the form of four orbits and the central particle, it is seen that Man achieves realization in Vritti, Vritti in Chitta, Chitta in Buddhi, Buddhi in Atma, and Atma achieves realization in coexistence. Achieving realization is the accomplishment of wisdom and its continuity. बढ़िया, आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड वील जस्ट रीड इट वंस लाइन बाय लाइन एंड maybe we'll not need much modifications also. जीवन ज्ञान के संबंध में निर्भ्रम और जागृत होने के पहले, है ना, मतलब जब तक भ्रमित हैं उससे पहले बुद्धिजीवी विद्वान कहलाने वाले व्यक्तियों में यह शंका होना उनकी अवस्था के अनुसार स्वाभाविक है कि जीवन ही जीवन को कैसे देख पाएगा और इसका प्रमाण क्या होगा, ये देख लिया है, यू नो, लाइक अब जो चीज दिखती नहीं है, कोई कह दे कि मैंने देख लिया है, व्हाट विल बी द एविडेंस दैट यू नो द अदर पर्सन हैज ट्रूली सीन इट? आई मीन समबडी सेज आई हैव सीन गॉड, अभी अभी द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द एविडेंस दैट ही हैज सीन गॉड? तो ये एविडेंस जो है बाबा जी ने इसको काफी इंपॉर्टेंस दी है। आई ऑल्सो, मेरे को शुरू से ही मतलब ऐसा लगा कि हाँ, ये वाली चीज ऐसी है, ये एविडेंस की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। So before becoming delusionless and awakened about the knowledge of Jivan, some so-called learned people and scholars, depending on their state, may have a doubt regarding how indeed will Jivan be able to see the Jivan and what will be its evidence. इसके उत्तर में यह देखा गया है, इट्स आंसर इज कि जीवन रचना अपने स्वरूप में गठनपूर्ण परमाणु के रूप में चार परिवेशीय और केंद्रीय अंशों सहित एक निश्चित और सार्थक रचना है। Its answer is that Jivan in itself is a definite and meaningful entity in the form of a constitutionally complete atom, है ना, गठनपूर्ण परमाणु, in the form of a constitutionally complete atom having particles in the nucleus and in four orbits. इसमें हर परिवेश और केंद्रीय अंश सभी क्रियाशील रहते हैं,
In this, all the orbital and central particles remain active. किसमें रहते हैं ये? जागृत जीवन में, है ना, उसमें उसकी बात कर रहे हैं। इसमें जीवन ज्ञान में जागृत जीवन जो है वो इसमें सारे के सारे जो है वो एक्टिव रहते हैं। अदरवाइज इन भ्रमित जीवन बुद्धि और आत्मा वाली और चिंतन वाली एक्टिविटीज वो डोरमेंट रहती है। यू नो, द पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज oblivious टू दोज एक्टिविटीज, दे आर देमसेल्व्स अनअवेयर अबाउट दोज एक्टिविटीज। ओके, तो बाबा जी ने हमको ध्यानाकर्षण किया है। बाबा जी हैज ड्रॉन आवर अटेंशन टू द फैक्ट दैट अभी तो हम जितना मान रहे थे जीवन को, जीवन उससे बियॉन्ड है। जब हम उसको देखना शुरू करते हैं, है ना, देखना शुरू करते हैं, मतलब समझना शुरू करते हैं, तब समझ में आता है। इसका एविडेंस क्या है? जो जो उसको सीरियसली देखता है, समय लगाकर देखता है, गंभीरता से देखता है, वो उसको धीरे धीरे करके स्पष्टता बनती है ना। एंड व्हाट दे फिगर आउट, व्हाट दे फाइंड आउट इज द सेम, है ना। ये हम सब अपने में धीरे धीरे जितना हमने किया उतना ऐसा पाया। इसमें हर परिवेश और केंद्रीय इन सभी क्रियाशील रहते हैं। इन दिस ऑल द ऑर्बिटल एंड सेंट्रल पार्टिकल्स रिमेन एक्टिव। इस तथ्य के रूप में नाम के लिए मध्यांश केंद्र को आत्मा, सो फॉर द पर्पस ऑफ नोमेनक्लेचर द न्यूक्लियस और द सेंट्रल पार्टिकल, केंद्रीय अंश को, मध्यांश को आत्मा, हैज बीन नेम्ड एज आत्मा। प्रथम परिवेशीय अंशों को बुद्धि, पार्टिकल्स इन फर्स्ट ऑर्बिट एज बुद्धि। द्वितीय परिवेशीय अंशों को चित्त, पार्टिकल्स इन सेकंड ऑर्बिट एज चित्त। तृतीय परिवेशीय अंशों को वृत्ति, पार्टिकल्स इन द थर्ड ऑर्बिट एज वृत्ति। और चतुर्थ परिवेशीय अंशों को मन नाम दिया है, एंड पार्टिकल्स इन द फोर्थ ऑर्बिट एज मन। Okay, they have been named as such. ठीक हो गया इतना। अस्तित्व सहज रूप में ये सब वस्तुएं जो सदा सदा वास्तविकता को प्रकाशित किया रहते हैं। अब ये सब वस्तुओं के बाद में जो जो है, इसकी मेरे को कोई इंपॉर्टेंस ऐसा लग रहा है कि ये गलती से आया है, तो इसको मैं ऐसा पढ़ रहा हूं। अस्तित्व सहज रूप में ये सब वस्तुएं, है ना, ये की भी पता नहीं आवश्यकता है कि नहीं है। अस्तित्व सहज रूप में सब वस्तुएं सदा सदा वास्तविकता को प्रकाशित किया रहते हैं। ऑल द रियलिटीज इन एग्जिस्टेंस सीजलेसली एग्जिबिट रियलनेस इन ए नॉन मिस्टीरियस वे, है ना, वास्तविकता को प्रकाशित किया रहता है। इसमें नॉन मिस्टीरियस वर्ड हिंदी में आया नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इसमें एम्फेसाइज ये कर रहे हैं कि जो रियलिटी है वो अपने आप को मैनिफेस्ट कर ही रही है। देयर इज नथिंग विच डज नॉट मैनिफेस्ट इटसेल्फ। ओके, देयर इज नो मिस्ट्री, देयर इज नो अननोन। ओके, सो रियलिटी अपने को एग्जिबिट कर रही है इन ए नॉन मिस्टीरियस वे, नॉन मिस्टीरियस मैनर। जीवन अस्तित्व सहज वस्तु है, तो सब वस्तुएं अपने को प्रकाशित कर रही हैं। जीवन भी अस्तित्व में एक रियलिटी है, तो ये भी अपने को प्रकाशित कर रहा है। जैसे हम बाकी सब रियलिटी को समझ सकते हैं, वैसे ही जीवन को भी समझ सकते हैं। दिस इज द आंसर बाबा जी इज बिल्ड। तो ऑल द रियलिटीज इन एग्जिस्टेंस सीजलेसली एग्जिबिट रियलनेस इन ए नॉन मिस्टीरियस वे। जीवन इज ऑल्सो इज एन एग्जिस्टेंशियल रियलिटी, है ना। जीवन भी अस्तित्व सहज, कल इसको पढ़ेंगे तो जीवन भी अस्तित्व सहज वस्तु है। ऐसा करने से पिछले सेंटेंस से लिंक हो जाता है। सारी वस्तुएं जो है अस्तित्व में है, अपनी वास्तविकता प्रकाशित करती हैं। जीवन भी अस्तित्व सहज वस्तु है। जीवन रचना सूत्र भी सह अस्तित्व सहज विधि से ही रचित रहना देखा गया है। ओके, it has been seen that the constitution of जीवन also happens naturally by way of coexistence, है ना। तो जैसे बाकी सारी रचनाओं का कोई रचना सूत्र है, वो अस्तित्व में कोई विधि है, उसी तरह से जीवन का भी एक रचना सूत्र है, एक मैकेनिज्म है। ओके, एक डिजाइन है, विच इज बाय विच, मतलब जो कि यूनिफॉर्म है, यूनिवर्सल है, और हर व्यक्ति अध्ययन पूर्वक उसे समझ सकता है by way of coexistence, and every person can understand it by way of study, है ना। देखने का तात्पर्य समझना ही है ना। टू सी मीन्स टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर देखना, ये बाबा जी ना ये ऐसा कहते हैं ना, जीवन रचना सूत्र सहज से तो सहज विधि से रचित रहना देखा गया है। अभी देखा गया है मतलब ये आंख से देखने वाली चीज नहीं है, है ना। देखा गया है मतलब क्या है,
समझा गया, यहाँ पर इसको क्वालिफाई कर दिया, देखने का मतलब समझना है। Okay, so it has been seen that the constitution of Jivan happens naturally. Now, this seen is actually, to see means to understand. It has been understood that, है ना, ऐसा इसको देख सकते हैं। जागृत मानव में ही चार परिवेशीय और केंद्रीय अंश सहज विधि से रचित रचना स्वरूप में क्रम से मन वृत्ति में, वृत्ति चित्त में, चित्त बुद्धि में, बुद्धि आत्मा में और आत्मा सह अस्तित्व में अनुभूत होना देखा गया है। Only in awakened Jivan, naturally constituted entity in the form of four orbits and the central particle, Kram se man. So it is seen that man achieves realization in vritti, vritti in chit, chit in buddhi, buddhi in atma, and atma achieves realization in coexistence. है ना, तो ये क्या होता है, क्रम से मन वृत्ति में, वृत्ति चित्त में, चित्त बुद्धि में, बुद्धि आत्मा में, आत्मा सह अस्तित्व में अनुभूत होना देखा गया है। अनुभूत होना ही समझदारी की परिपूर्णता और उसकी निरंतरता है। अचीविंग रियलाइजेशन इज द अकम्प्लिशमेंट ऑफ विजडम एंड इट्स कंटेनमेंट। बाबा जी ने इस चीज को बोला ही है कि दृष्टिगोचर वास्तविकताएं हैं और ज्ञान गोचर वास्तविकताएं हैं। तो दृष्टिगोचर वास्तविकताएं जो है या इंद्रिय गोचर वास्तविकताएं, दोज रियलिटीज विच आर परसेप्टिबल बाय सेंसेस, है ना, which we can see, which we can touch. Then there are some other realities which are not perceptible by senses, but they are understandable. है ना, we can understand them. तो वो वाले पार्ट को भी बाबा जी धीरे से सीइंग वाले पार्ट में ले रहे हैं कि वो भी समझ में आ गया, मींस इट इज एज गुड एज सीन, है ना, अंडरस्टैंडिंग एंड सीइंग बिकम द सेम। बताइए। बहुत बढ़िया बात बताई भैया आपने, ये वाली कि दोनों कंडीशन में सीन जैसे एक जैसी ही कंडीशन बनती है। अगर मैंने कुछ देख लिया तभी भी कुछ समझ में आ गया, और ये हम्म लॉजिकली मैंने अगर ऐसे बात करके कुछ समझ लिया तभी भी समझ में ही आ रहा है, मतलब वो अंदर स्थिति एक ही जैसी बन रही है। बाद में जब हम्म उसको हम्म अगर कहीं किसी को बताना पड़ रहा है ना, तो जी, देखे हुए को बताना या समझे हुए को बताना एक ही बोले तरीके से हो रहा है। एक, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बढ़िया बात। बिल्कुल ठीक। देव भाई, पूनम दीदी, एनीथिंग? भैया ये क्रम जो शब्द है इसका, इसको आपको लगता है कि इसको यूज करना चाहिए? कहाँ Meaning, पर? जो लास्ट पैराग्राफ में जी, क्रम, जागृत मानव में ही क्रम से मानव वृत्ति में, ओके, दिस क्रम से मतलब रेस्पेक्टिवली, मेरे को ऐसा लग रहा है मतलब एक इसमें पर्टिकुलर कहीं सीक्वेंस है वो। सीक्वेंस है तो, और हाँ, ओके ओके, हाँ वो, हाँ, आई क्रम थिंक से, यस। एक इम्पोर्टेंट वर्ड है शायद, मुझे लगता है। Only in the awakened even in the form of four organisms, it is saying that क्या लिखेंगे उसको, सीक्वेंशियली लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सीक्वेंशियली आई थिंक इज अ गुड वर्ड, बट कहाँ प्लेस होगा कहाँ वो। पे, यस यस, बिल्कुल एंड में डाल दे। वैसे तो ऐसा जब कुछ नहीं लिखा रहता है तो मतलब एक लीगल डिस्क्लेमर के रूप में ये कह सकते हैं कि जिस क्रम में लिखा हुआ उसी क्रम में काम भी होगा। है ना, तो लिखा भी इस क्रम में हुआ है और इसी क्रम में काम होगा, लिखे। And I'm not happy here.
यहाँ पे लिखने से तो ठीक नहीं लग रहा। Sequentially, it is seen. कहाँ पे कह रहे हैं दीदी? It is seen that मन achieves realization. तो it is seen के पहले sequentially लगा सकते हैं क्या? Sequentially, it is seen that. एक्चुअली वो फिर सीन पर सीक्वेंशियली हो जाएगा. हम्म It is seen it is seen that It is seen. sequentially. How about this? It is seen that sequentially. हम्म Better. हम्म दिस इज ओके। मतलब बाकी जो है वो समझाने वाला भी समझा ही देगा। जी. जब भी जैसे हम लोग हिंदी में अध्ययन करते हैं वैसे इंग्लिश में भी देयर विल बी सम फैसिलिटेटर, आई एम श्योर। जब भी लोग इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो सीक्वेंशली का मतलब जो है वो प्लेस हो जाएगा। गुड, द गुड ऑब्जर्वेशन एक्चुअली। मतलब ये क्रम से इज इम्पोर्टेंट। गुड दैट वी कैप्चर्ड इट। बढ़िया. ठीक है, आई थिंक दिस इज गुड। और ये अच्छा चैप्टर शुरू हो गया। अभी अभी जो है ना, जैसे वी वर सेइंग कि अभी तक जितना हमने बुक पढ़ा उसमें काफी सारा पार्ट जो था ना वो समीक्षा वाला पार्ट था, है ना। मतलब द Right. हिस्टोरिकल एफर्ट्स और उसके वाला। अभी जो है अभी डीपर जो है इसमें जा रहे हैं आगे चल के। सो वी लुक फॉरवर्ड टू फर्दर रीडिंग। ठीक है, अभी आज के सेशन के लिए क्लोज करें क्या? जी भैया, बढ़िया रहा. जी जी, गुड, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। एंड आज की मीटिंग क्लोज करते हैं एंड वील मीट अगेन ऑन 27th October सेम टाइम। टिल देन, नमस्ते, गुड बाय। नमस्ते. They